السلام علیکم دوستو، مولانا ابو الہی مودودی صاحب کے کتاب کتبات سے کچھ اٹھائی گئی باتیں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ رسول کی رہنمائی کا اقرار کی ذمہ داریاں۔ اسلام لانا خدا پر احسان نہیں، کلمہ طیب اور کلمہ خبیثہ۔ رسول کی رہنمائی کا اقرار۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم محمد رسول اللہ کہتے ہو، اس کی معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر ہے جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کا احکام کیا ہے۔ ہم کو سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، اور کون سے کام نہ کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور کس کے خلاف ورزی کرنے پر وہ ہمیں سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا انچ مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنے یہ کتاب ہمارے پاس بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بس جب تم نے محمد رسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون، جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تم اس کی پیروی کرو گے، اور جو قانون کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجو گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہ اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا قانون حق ہے، اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اس اقرار کی بدولت تو تم مسلمان کے بھائی بنے، اس کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اس کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اس کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جائز اولاد بنی، اس کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ فرصت پر جائیں کہ تمہارے مسلمان تمہارے مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دیں، تمہاری جان و مال اور عزت پر آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیں، اور ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی یہ بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی معنی جانتے ہو اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ اس کی پیروی پر مجبور کرنے والوں کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے، اس کے لیے اس کے قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کے پولیس، فوج، عدالت اور جیل موجود ہیں، اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے۔ ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے، اپنے خدا کو، ساری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور خود اپنی نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ اقرار کی ذمہ داریاں۔ بھائیو اور دوستو، ابھی میں نے تمہارے سامنے کلمہ طیب کی معنی بیان ہے۔ ابھی اس سلسلے میں ایک اور پہلو کی طرف تم کو توجہ دلاتا ہوں۔ میں نے اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تمہارے اور ہر چیز کا مالک ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی مالک ہیں۔ تمہارے ہاتھ اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہارے جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز تمہاری نہیں، سب کچھ خدا کے ملک ہیں اور خدا کی طرف سے عطیہ کی طور پر تمہیں ملی ہیں۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، مال میرا ہے، اور فلاں چیز میری ہے اور فلاں چیز میری ہے؟ دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دینا بالکل ایک لفو بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات کچی دل سے مانتے ہو کہ ان سب چیزوں کا مالک خدا ہے، اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہیں اور اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کی ہیں، تو جس طرح مالک کہتا ہے اس طرح تمہیں ان چیزوں سے کام لینا چاہیے، اس کی مرضی کے خلاف
उनसे काम लेते हो तो धोखाबाजी करते हो। तुम अपने उन हाथों और पाँव को भी उसकी पसंद के खिलाफ फैलाने का हक न रखते। तुम उन आँखों से भी उनकी मर्जी के खिलाफ देखने का काम नहीं ले सकते। तुम को उस पेट में भी कोई ऐसी चीज़ डालने का हक नहीं है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। तुम्हें उन ज़मीनों और उन फरसत पर जायदादों पर भी मालिक की मनुष्य की खिलाफ कोई तसरफ करने का हक हासिल नहीं हो। तुम्हारी बीवियां जिनको तुम अपने कहते हो, तुम्हारे औलाद जिनको तुम अपनी कहते हो, ये सब सिर्फ इसलिए तुम्हारी हैं कि तुम्हारे मालिक की दी हुई हैं। लिहाजा तुम को उनसे भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि मालिक के हुक्म के मुताबिक ही बर्ताव करना चाहिए। अगर इसके खिलाफ करोगे तो तुम्हारी हैसियत गजब की होगी। जिस तरह दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने वाले को तुम कहते हो कि ये बेईमान हैं, इस तरह अगर खुदा की दी हुई चीज़ों को तुम अपना समझ लेकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करोगे या खुदा के सिवा किसी और की मर्ज़ी के मुताबिक उनसे काम लोगे तो वही बेईमानी का इल्ज़ाम तुम पर भी आएगा। अगर मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक करने में कोई नुकसान होता है तो हुआ करे, जान जाती है तो जाए, हाथ पांव टूटते हैं तो टूटें, औलाद का नुकसान होता है तो हो, मालिक और जायदाद बर्बाद होता है तो हुआ करे। तुम्हें क्यों गम हो जिसकी चीज़ है वही अगर नुकसान पसंद करता है तो उसको हक है। या अगर मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ तुम काम करो और उसमें किसी चीज़ का नुकसान हो तो बिलाशबा तुम मुजरिम होगे, क्योंकि दूसरे की माल को तुमने खराब किया। तुम खुद अपनी जान के भी मुख्तियार नहीं हो। मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक जान दोगे तो मालिक का हक अदा दोगे, उसके खिलाफ काम करने में जान दोगे तो ये बेईमानी होगी। इस्लाम लाना खुदा पर एहसान नहीं। दूसरी बात यह है कि मालिक ने जो चीज़ तुम्हें दी है उसको अगर तुम मालिक के ही काम में सर्फ करते हो तो किसी पर एहसान नहीं करते, न मालिक पर न किसी और ऊपर। तुमने अगर उसकी राह में कुछ दिया या कुछ खिदमत की या जान दे दी जो तुम्हारी नज़दीक बहुत बड़ी चीज़ है, तब भी कोई एहसान किसी पर नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो काम तुमने किया वो बस इतना है तो ये है कि मालिक का जो हक तुम पर था वो तुमने अदा कर दिया। ये कौन सी ऐसी बात है जिस पर कोई फूलों और फखर करे और ये चाहे उसकी तारीफें की जाएं और ये समझे कि उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है जिस पर उसकी बड़ाई तस्लीम की जाए। याद रखो कि सच्चा मुसलमान मालिक की राह में कुछ सिर्फ करने या कुछ खिदमत करने के बाद भूलता नहीं है, बल्कि खाक सारी अख्तियार करता है। फखर करना कार खैर को बर्बाद कर देता है। तारीफ की ख्वाहिश जिसने की और उसके खातिर कोई कार खैर किया वो खुदा के हाँ किसी अजर का मुस्तक न रहा, क्योंकि उसने तो अपने काम का मुआवजा दुनिया ही में मांगा और यही उसको मिल भी गया। अल्लाह का एहसान और हमारा रवैया भाइयों और अपनी मालिक का एहसान देखो कि अपनी चीज़ तुमसे लेता है और फिर कहता है कि ये चीज़ मैंने तुमसे खरीदी है और उसका मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह अकबर। उस शान जोद करम का भी कोई ठिकाना है। कुरान में इरशाद होता है कि अल्लाह ने ईमानदारों से उनकी जानें और उनका माल खरीद लिए हैं, उस मुआवजे के उनके लिए जन्नतें हैं। ये तो मालिक का बर्ताव तुम्हारे साथ है। अब ज़रा अपना बर्ताव भी देखो। जो चीज़ मालिक ने तुमको दी थी और जिसको मालिक ने फिर तुमसे मुआवजे देकर खरीद भी लिया, उसको गैरों के हाथों बेचते हुए नहायत ज़लील मुआवजे ले कर बेचते हो। वो मालिक की मर्ज़ी के खिलाफ तुमसे काम लेते हैं और तुम ये समझ कर उनकी खिदमत करते हो कि गैर रिज़्क़ वो हैं। तुम अपने दिमाग बेचते हो, अपने हाथ पाँव बेचते हो, अपने जिस्म की ताकतें बेचते हो और वो सब कुछ बेचते हो जिसको खुदा के बागी खरीदना चाहते हैं। उससे बढ़कर बद अखलाकी और क्या हो सकती है। बेचे
हुए चीज़ को फिर किसी के हाथों बेचना कानून और गैर अखलाकी जुर्म है। दुनिया में उस पर दगाबाजी और फरेब दही का मुकदमा चलाया जाता है। क्या तुम समझते हो कि खुदा की अदालत में इस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? कलमा तैयब और कलमा खबीसा। बिरादरान अस्सलाम, पिछले खुतबे में कलमा तैयब के मुतालिक मैंने आपसे कुछ कहा था। आज फिर उस कलमे के कुछ और तशरीह में आपके सामने बयान करूँगा, इसलिए कि ये कलमा ही इस्लाम की बुनियाद है। इसके ज़रिए ही से आदमी इस्लाम में दाखिल होता है और कोई शख्स हकीकत में मुसलमान बन नहीं सकता जब तक वो इस कलमे को पूरी तरह समझ न ले और ये अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक न बना ले। अल्लाह ताला ने अपनी किताब मजीद में इस कलमे की तारीफ़ इस तरह फरमाई है। कलमा तैयब की मिसाल ऐसी है जैसे कोई अच्छी ज़ात का दरख्त हो जिसकी जड़ ज़मीन में गहरी जमी हुई हैं और शाखें आसमान तक फैली हुई हो और जो हर वक्त अपनी परवरदिगार के हुक्म से फल लाए चला जाता है। उसके बरकस कलमा खबीसा के मिसाल एक बदजात दरख्त के जैसी है जो ज़मीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है। उसके लिए कोई इंतकाम नहीं है। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौल साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत दोनों में सबात अता करता है और जालिमों को अल्लाह भटका देता है। अल्लाह को अख्तियार है जो चाहे करे। यानी कलमा तैयब की मिसाल ऐसी है जैसे कोई अच्छी ज़ात का दरख्त हो जैसे कि जड़ें ज़मीन में जमी हुई हो और जिसकी शाखें आसमान तक फैली हो। वो हर वक्त अपने परवरदिगार के हुक्म से फल और फल लाए चला जाता हो। उसके बरकस कलमा खबीसा यानी बड़ा एतकाद और झूठा कौल ऐसा ही जैसे एक बदजात खुदोरो पौधा कि वो बस ज़मीन के ऊपर ही ऊपर होता है और एक इशारे में जड़ छोड़ देता है क्योंकि उसकी जड़ गहरी जमी हुई नहीं होती। ये ऐसे ही बेनज़ीर ने मिसाल या अल्लाह ताला ने दी कि अगर तुम इस पर गौर करो तो बड़ा सबक इसमें तुम्हें मिलेगा। देखो तुम्हारे सामने ये दोनों किस्म के दरख्तों की मिसालें मौजूद हैं। एक तो ये आम का दरख्त है, कितना गहरा जमा हुआ है, कितनी बुलंदी तक उठा हुआ है, शाखें कितनी फैली हुई हैं, कितने अच्छे फल उसमें लगते हैं। ये बात इससे क्यों हासिल हुई? इसलिए कि इसकी गिटली जोरदार थी, उसको दरख्त बनने का हक हासिल था और वो हक इतना सच्चा था कि जब उसने अपने हक का दावा किया तो ज़मीन ने, पानी ने, हवा ने, दिन ने और गर्मी ने और रात की ठंडक ने, गर्ज हर चीज़ ने उसके हक को तस्लीम किया और उसने जिससे जो कुछ मांगा हर एक ने वो उसको दिया। उस तरह वो अपने हक के ज़ोर पर इतना बड़ा दरख्त बन गया और अपने मीठे फल देकर उसने साबित भी कर दिया कि हकीकत में वो ऐसे काबिल था कि ऐसा दरख्त बने। और ज़मीन आसमान के सारे क़ुव्वतों ने उस मिलकर उसका साथ दिया तो कुछ बेजान नहीं किया बल्कि उसको ऐसा करना ही चाहिए था। उसलिए ये दरख्तों का ग़िज़ा देने और बढ़ाने और पकाने का जो ताकत ज़मीन और पानी और हवा और चीज़ों के पास है वो ऐसे काम के लिए तो ये कि अच्छी ज़ात वाले दरख्त के काम आए। इसके मुकाबले में ये झाड़ छकाड़ और खुदोरो पौधे हैं, उनकी बसात ही क्या है। ज़रा सी जड़ के एक बच्चा अखाड़ ले, नरम और पौधा इतना के हुआ कि एक झोंके से मुरझा जाए। हाथ लगाओ तो कांटे से तुम्हारे खबर लें, चखो तो मुंह का मज़ा ख़राब कर दें। रोज़ खुदा जाने कितने पैदा होते हैं और कितने उखाड़े जाते हैं। उनका ये हाल क्यों है? इसलिए कि उनके पास हक का वो ज़ोर नहीं जो आम के पास है। जब आला ज़ात के दरख्त नहीं लगते तो ज़मीन बेकार पड़े उगता जाती है और उन पौधों को अपने अंदर जगह दे देती हैं। कुछ मदद पानी कर देता है, कुछ हवा अपने पास से सामान दे देती है, मगर ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ भी ऐसी पौधे का हक मानने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए ना ज़मीन अपने अंदर की जड़ें फैलने देती है, ना पानी उनको दिल
खोल कर ग़िज़ा देता है, और ना हवा कुछ खुली दिल से उनको परवाह जलाती हैं। फिर जब इतनी सी बरसात पर ये खबीस पौधे बज़मदा खारदार और जहरीले बन कर उठते हैं, तो वाक़ये में साबित हो जाता है कि ज़मीन और आसमान की ताकतें ऐसी पौधे उगाने के लिए नहीं थी। उनको इतनी ज़िंदगी भी मिली तो बहुत मिली। उन दोनों मिसालों को सामने रखो और फिर कलमा तैयब और कलमा खबीस के फ़र्क पर गौर करो। कलमा तैयब क्या है? कलमा तैयब क्या है? इस एक सच्ची बात है। इसी सच्ची बात के दुनिया में इससे ज़्यादा सच्ची बात कोई हो ही नहीं सकती। सारा जहान का खुदा एक अल्लाह है। उस चीज़ पर ज़मीन और आसमान की हर चीज़ गवाही दे रही है। ये इंसान, ये जानवर, ये दरख्त, ये पत्थर, ये रेत की ज़रे, ये बहती हुई नहर, ये चमकता हुआ सूरज, ये सारी चीज़ें जो हर तरफ फैली हुई हैं, उनमें से कौन सी चीज़ है जिसको अल्लाह के सिवा किसी और ने पैदा किया हो, जो अल्लाह के सिवा किसी और की मेहरबानी से ज़िंदा कायम रह सके, जिसके अल्लाह के सिवा कोई और फना कर सकता हो। बस जब ये सारा जहान अल्लाह का पैदा किया हुआ है और अल्लाह ही की इनायत से कायम है और अल्लाह ही उसका मालिक और हाकिम है, तो जिस वक्त तुम कहोगे कि इस जहान में उसे एक अल्लाह के सिवा किसी और की खुदाई नहीं हो तो ज़मीन आसमान की एक चीज़ पुकारेगी कि तूने बिल्कुल सच्ची बात कही है। हम सब तेरे इस कौल की सदाकत पर गवाह हैं। जब तुम उसके आगे सर झुकाओगे तो हर चीज़ तुम्हारे सामने झुक जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी तो इसी की इबादत गुजार हैं। जब तुम उसके फरमान के पैरवी करोगे तो ज़मीन आसमान की हर चीज़ तुम्हारा साथ देगी, क्योंकि ये सब भी तो उस खुदा की फरमान बरदार हैं। जब तुम उसकी राह में चलोगे तो तुम अकेले ना होगे, बल्कि कायनात का बेशुमार लश्कर तुम्हारे साथ चलेगा, क्योंकि आसमान के सूरज से लेकर ज़मीन के उस हकीर ज़रा तक हर चीज़ हर आन से की राह में तो चल रही हैं। जब तुम उस पर भरोसा करोगे तो किसी छोटी ताकत पर भरोसा न करोगे, बल्कि उस अजीम अलीशान ताकत पर भरोसा करोगे जो ज़मीन और आसमान सारे खजानों के मालिक हैं। गर्ज उस हकीकत पर जब तुम नज़र रखोगे तो तुमको मालूम होगा कि कलमा तैयब पर ईमान ला कर जो इंसान अपनी ज़िंदगी को इससे के मुताबिक बना लेगा, ज़मीन आसमान के सारी ताकतें उसका साथ देंगी। दुनिया से लेकर आखिरत तक वो फूलता फैलता ही चला जाएगा और कभी एक लम्हा के लिए भी नाकामी और नामुरादी इसके पास ना आएगी। यही चीज़ अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है कि ये कलमा ऐसा दरख्त हैं जैसे कि जड़ें ज़मीन में जमी हुई हैं, शाखें आसमान पर फैली हुई हैं, और हर वक्त ये खुदा का हुक्म से फल लाता रहता है। कलमा खबीस क्या है? इसके मुकाबले में ये कलमा खबीस को देखो। कलमा खबीस क्या चीज़ है? ये कि इस जान का कोई खुदा नहीं, या ये कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की खुदाई भी है। गौर करो, उससे बढ़कर झूठी और बेअसल बात और क्या हो सकती है? ज़मीन और आसमान के कौन सी चीज़ पर गवाही देती हैं? दहर ये कहता है कि खुदा नहीं है। ज़मीन आसमान की हर चीज़ कहती है कि तुम झूठा है। हमको और तुझे को खुदा ही ने पैदा किया है, और उस खुदा ने तुझे को वो ज़ुबान दी है जिससे तुम ये झूठ बक रहा है। मुशरिक कहता है कि खुदाई में दूसरे भी अल्लाह के शरीक हैं, दूसरे भी राज़िक हैं, दूसरे भी मालिक हैं, दूसरे भी फ़ायदा और नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते हैं, दूसरे भी दुआएं सुनने वाले हैं, दूसरे भी डरने के लायक हैं, दूसरे भी भरोसा करने के काबिल हैं। उस खुदाई में दूसरे का हुक्म भी
चलता है और खुदा के सिवा दूसरे का फरमान और कानून भी पैरवी के लायक हैं। उसके जवाब में ज़मीन आसमान की हर चीज़ कहती हैं कि तुम बिल्कुल झूठा है। हर बात जो तुम कह रहा है ये हकीकत के खिलाफ हैं। अब गौर करो कि ये कलमा जो शख्स अख्तियार करेगा और उसके मुताबिक जो शख्स ज़िंदगी बसर करेगा दुनिया आखिरत में, वो क्यों कर फल सकता है। अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से ऐसी लोगों को मोहलत दी रखी है कि रिज़्क़ का वादा उसने किया है। उसके लिए ज़मीन और आसमान की ताकतें किसी न किसी तरह उसकी भी परवरिश करेंगी, जिस तरह वो झाड़ झंकार और खुदरों पौधों को भी आखिर परवरिश करती हैं। लेकिन कायनात की कोई चीज़ भी ऐसी का हक समझ कर इसके साथ ना देगी और ना पूरी ताकत के साथ उसकी मदद करेगी। वो उन्हें खुद और दरख्तों की तरह होगा जिनकी मिसाल अभी आपके सामने बयान हुई है। नताइज का फ़र्क। ये फ़र्क दोनों के फूलों में है। कलमा तैयब जब कभी फलेगा उससे मीठी और मुफीद फल ही पैदा होंगे। दुनिया उससे अमन कायम होगा, नेकी और सच्चाई और इंसाफ का फूल पाला होगा और खल्क खुदा से फ़ायदा ही उठाएगी। मगर कलमा खबीस की जितने परवरिश होगी उससे खारदा शाखें ही निकलेंगी, उसमें कड़वे किसीले फल ही आएंगे, उसके रग रग में जहर ही भरा होगा। दुनिया में अपनी आँखों देख लो, जहाँ कुफर और शर्क और दहरियत का जोर है वहाँ क्या हो रहा है। आदमी पहाड़ खाने के तैयारियाँ कर रहा है। आबादियाँ तबाह करने के सामान हो रहे हैं। जहरीले गैस बन रहे हैं। एक कौम दूसरी कौम को बर्बाद करने में तली हुई है। जो ताकतवर हैं वो कमज़ोरों को गुलाम बनाता है, सिर्फ इसलिए कि इसके हिस्से की रोटी छीन कर खा जाए। और जो कमज़ोर हैं वो फौज और पुलिस और जेल और फांसी की ज़ोर से दब कर रहने और ताकत का ज़ुल्म सहने पर मजबूर किया जाता है। फिर उन कौमों के अंदरूनी हालत क्या है। इखलाक बदतरीन से बदतरीन है, जिन पर शैतान भी शर्माए। इंसान वो काम कर रहा है जो जानवर भी नहीं करते। माएँ अपने बच्चों को अपने हाथ से हरा करती हैं कि कहीं बच्चे उनके ऐश में खलील न डाल लें। शौहर अपनी बीवियों को खुद गैरों के बगल में देते हैं ताकि उनकी बीवियाँ उनकी बगल में आएँ। नंगों के किले बनाए जाते हैं जिनमें मर्द और औरत जानवरों की तरह बरहना एक दूसरे के सामने फिरते हैं। अमीर सूद के ज़रिए से गरीबों का खून चूस लेता है और मालदार नादारों से इस तरह खिदमत लेते हैं कि गया वो उनके गुलाम हैं और सिर्फ उनकी खिदमत ही के लिए पैदा हुए हैं। गैज़ इस कलमे खबीस से जो पौधा भी जहाँ पैदा हुआ कांटे से भरा हुआ है और जो फल भी उसमें लगाता है कड़वा और जहरीला ही होता है। अल्लाह ताला उन दोनों मिसालों को बयान फरमाने की बाद आखिर में फरमाता है कि अल-ज़ालिमीन यानी कलमा तैयब पर जो लोग ईमान लाएंगे अल्लाह उनके एक मजबूत कौल के साथ देना और आखिरत दोनों में सबात और जमाऊ बख्शेगा। और उनके मुकाबले में वो ज़ालिम लोग जो कलमा खबीस के मानेंगे अल्लाह उनके सारी कोशिशों को भटका देगा। वो कभी कोई सीधा काम न करेंगे जिनसे दुनिया आखिरत में कोई अच्छा फल पैदा न हो। कलमा गो ख्वार क्यों। भाइयों, कलमा तैयब और कलमा खबीसा का फ़र्क और दोनों के नतीजे तुमने सुन लिए। अब तुम ये सवाल ज़रूर करोगे कि हम तुम कलमा तैयब के मानने वाले हैं, फिर क्या बात है कि हमने फैलते न फूलते हैं, और कफ़ार जो कलमा खबीसा के मानने वाले हैं ये क्यों फूले हैं। इसका जवाब मेरा ज़िम्मा है और मैं जवाब दूंगा बशरती का आप
میں سے کوئی میرے جواب پر برا نہ مانے، بلکہ اپنی دل سے پوچھے کہ میرے جواب واقعی صحیح ہے یا غلط۔ اول تو آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کلمہ طیب کو مانتے ہیں اور پھر بھی نہیں پھولتے ہیں۔ کلمہ طیب کو ماننے کے معنی زبان سے کلمہ پڑھنے کی نہیں ہے، اس کی معنی دل سے ماننے کی ہے، اور اسے طرح ماننے کی ہے کہ اس کے خلاف کوئی عقیدہ آپ کے دل میں نہ رہے اور اس کے خلاف کوئی کام آپ سے نہ ہو سکے۔ میرے بھائیو، خدا را مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا حقیقت میں یہ حال ہے کیا؟ سینکڑوں ایسے مشرکانہ اور کافرانہ خیالات تم میں نہیں پھیلے ہوئے ہیں جو کلمہ طیب کے بالکل خلاف ہیں؟ کیا مسلمان کا سر خدا کے سوا دوسرے کے آگے نہیں جھک رہا ہے؟ کیا مسلمان دوسرے سے خوف نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی مدد پر بھروسہ نہیں کرتا؟ کیا وہ دوسروں کی رزق نہیں سمجھتا؟ کیا وہ خدا کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے کے قانون کو خوشی خوشی پیروی نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والی عدالتوں میں جا کر یہ صاف نہیں کہتے کہ ہم شریعہ کو نہیں مانتے بلکہ رسم و رواج کو مانتے ہیں؟ کیا تم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کو دینی فائدوں کے لیے خدا کے قانون کی کسی دفعہ کو توڑنے میں ذرا تعمل نہیں ہوتا؟ کیا تم میں وہ لوگ موجود نہیں ہیں جن کو کفار کے غضب کا ڈر ہے مگر خدا کے غضب کا ڈر نہیں، جو کفار کا نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے مگر خدا کی نظر عنایت کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، جو کفار کی حکومت کو حکومتی سمجھتے ہیں اور خدا کی حکومت کے متعلق انہیں کبھی یاد بھی نہیں آتا کہ وہ کبھی کہیں موجود ہیں۔ خدا را بتاؤ کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اگر یہ واقعہ ہے تو پھر کس منہ سے یہ تم کہتے ہو کہ کلمہ طیب کے ماننے والے ہیں اور اس باوجود ہم نہیں پھولتے؟ پہلے بچے، دل سے ایمان لاؤ اور کلمہ طیب کے مطابق زندگی اختیار کرو، پھر اگر وہ درخت نہ پیدا ہو جو زمین میں گہری جڑیں کے ساتھ جمنے والا اور آسمان تک چھا جانے والا ہے تو معاذ اللہ اپنے خدا کو چھوٹا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں غلط بات کا اطمینان دلایا۔